Hello and welcome back to your own channel, Happy Life. Today we are going to discuss about that 1% extra which we require. So what is this 1% extra and how does it work? What is the magic of doing that 1% extra? Let me explain you each and everything in detail in this session. So stay tuned till the end. So now coming back to few examples wherein we can understand what is this 1% extra. जो मैं 1% एक्स्ट्रा की बात कर रही हूँ होता क्या है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताने वाली हूँ. फर्स्ट एग्जांपल इज teachers. They teach in a very special way in order to make the students understand much better, and this makes the regular teaching a little different from what they are teaching now. So the students, they understand the subject well, and this is how the teacher becomes a favorite one. So how does this work, how does this happens? क्योंकि नॉर्मली जो टीचिंग में उनका एफर्ट लगता है दैट इज 100% इफ दे आर गिविंग, तो इन दिस केस दे आर गिविंग 101% टू मेक दैट टीचिंग लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल टीचिंग हैबिट्स. और यही 1% जब एक्स्ट्रा होता है तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से, एंड दिस मेक्स देम little easier, and this makes their favorite teacher. So this is how it works. Second is मदर्स के लिए है ये. उनके जो बच्चे जब घर आते हैं, the kids they run home very hungry, and they already knew that उनकी मॉम ने कुछ ना कुछ उनके लिए बना के रखा होगा, and this is something which they expect. But if they get that 1% extra, normally जो उनको फूड मिलता है वो तो मिल ही रहा है, but उनको एक्स्ट्रा अगर उनका फेवरेट मिल जाए तो this is the 1% extra which the mother is putting in, right? So this is how it works. उसमें क्या होगा, चाइल्ड नॉर्मली जितना खुश होता होगा उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, जस्ट बिकॉज उसका फेवरेट कुछ भी मैगी हो सकता है, मैक्रोनी हो सकता है, एनी फेवरेट डिश, कोई भी स्नैक हो सकता है, सैंडविचेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो दिस इज हाउ दिस 1% एक्स्ट्रा वर्क्स. So these are the two examples. Let me take you to the third example. And the third example is of the students. Students, they work regularly for exams. They study hard for exams. And if they put in some extra effort, some extra hours of studying, then the regular working, this study hours, normally जितने भी study hours उनके होते हैं उसमें अगर कुछ 1 से 2 घंटा 2 से 3 घंटा extra अगर effort अपना डालते हैं study करने में, this makes them different, right? तो जो normally जितने students prepare कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा वो आगे निकल पाते हैं, and this is the reason how they succeed in scoring high in exams, right? So this is that 1% which is working here. And then is the example of an employee. हम लोग एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, एंड हाउ दे पुट दैट 1% एक्स्ट्रा, वट एवर टास्क इज बीइंग गिवन टू देम. If they normally do the routine task which has been provided to them, that is a normal working that they are doing, and if they put in some extra effort, if they put the 1% extra in the normal working efforts that they are doing, this is how they differentiate themselves, and this is how they make their task much more better than the normal working task. तो इसीलिए वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं अपने आप को दूसरों से, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दे आर मेकिंग देम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर्स, एंड दिस इज हाउ दे गेट द सक्सेस इन देयर ईच एंड एवरी एफर्ट. क्योंकि हर टास्क में वो अपना 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं. जो 1% एक्स्ट्रा हम देते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सक्सेस हमें जरूर मिलती है, एंड दिस इज हाउ आवर ग्रोथ पैटर्न वर्क्स. So this is the 1% extra, the power of 1% extra. I explained you with few examples what is this 1% extra, or I think most of you would have understood now कि 1% extra की मैं क्या बात कर रही हूँ. But still, what is this 1% extra? Let me explain you in detail. So this extra, if this extra 1% could be an extra effort that you are putting in. जितना भी effort हम normally देते थे उससे 1% extra effort हमें देना है. Extra mile that you're going. नॉर्मली जितना भी आप काम करते थे उससे कुछ हटके आपने कुछ ज्यादा किया, दैट इज द एक्स्ट्रा माइल दैट यू आर पुटिंग फॉर getting that 1% extra, right? This could be an extra mile also. This could be an extra focus. जितना फोकस मैं अपने काम पे करती थी, अगर मान लीजिए मैं एक टास्क के ऊपर अपना 15 मिनट का फोकस लगाती हूँ, तो 15 मिनट के अंदर मैं ये सोचती हूँ कि हाउ दिस कैन बी डन, राइट? और मैं अगर उस 15 मिनट के अंदर ये भी सोचने पे अपना ध्यान दूँ, इसमें मैं अपना फोकस बढ़ाऊँ कि हाउ दिस कैन बी इम्प्रूव्ड और हाउ दिस कैन बी वर्क इन अ बेटर वे. So this is the 1% extra effort that I'm putting into that work. So this is an extra focus which I'm giving here, right, to my normal routine task. And this could be 1% extra. It could be a value addition from your side. 100% से 101% हम कर रहे हैं, but this could be a value addition as well. 1% extra देने के लिए, suppose मेरे KRA के अंदर I have got 5 tasks to do, right? और उन 5 tasks को करने के लिए मैं जितना भी टाइम लेती हूँ मैंने उतना टाइम लिया.
बट टाइम तो मेरे पास उतना ही है, उतने ही टाइम के अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ एक ऐसा टास्क किया विच मेक्स मी डिफरेंशिएट, which differentiates me from others. So this is the value addition that I'm giving in for that particular work or for that particular task. So this is how I am differentiating myself from the others. So this could be a value addition as well in the current working which we are doing. So this is how the 1% extra is defined. It could be an extra effort, it could be an extra mile that you're going for your customers, it could be an extra focus, it could be a value addition. So what is this extra 1% extra, and how does it work? What is the magic behind this 1% extra working? Let me explain you that as well. So now we come to the magic of 1% extra. So performance is equal to skill and effort, right? So this is the basic formula of performance. Performance is always calculated in terms of how much skills you have and how much effort you are putting in. So performance is equal to skills into efforts. Skills multiplied by efforts. So for this, it's very easy to understand that for doing any particular task or to perform any particular task, we need to have certain skill set, right? अगर मुझे कोई टास्क दिया जाता है, मुझे उसको करना है, तो आई शुड हैव दैट पर्टिकुलर स्किल सेट, मुझे वो आना चाहिए, राइट? कोई भी ऑपरेशनल वर्क है, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी प्रेजेंटेशन रिलेटेड वर्क है तो मेरे को पावर पॉइंट का नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी है। और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है तो इट कुड बी वर्ड विच आई नीड टू वर्क अपॉन, तो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो दिस इज अ स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स। और ये स्किल अगर मेरे पास में है, अगर स्किल है लेकिन मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ उसके अंदर, तो इट इज ऑफ नो यूज, परफॉर्मेंस मेरा कुछ होगा नहीं। स्किल्स तो सबके पास होते हैं, बट परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू स्किल। I may have certain skill, but I'm not performing. That means I'm not putting in any effort. That is how only skills are there and no effort is there. So there is no performance, right? So how does it work? Performance is equal to skills multiplied by effort. तो skills सबके पास होते हैं, लेकिन उसको multiply करना है effort के साथ में. You need to put more and more efforts. मैंने आपको बताया 100% efforts अगर आप देते हो तो 101% efforts अपने देने हैं. This is how your performance is going to raise high. This is how it works, right? So this is what the performance, simple formula of performance is. And the next is the more growth opportunities and growth curve definitely improves. And how does it work? Because 1% extra effort जो हम डालते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं किसी भी काम को करने में अपना ज्यादा एफर्ट दे रही हूँ, अपना ज्यादा एनर्जी दे रही हूँ, अपना ज्यादा फोकस दे रही हूँ, राइट? तो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होनी ही होनी है। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है अगर, तो मेरी ग्रोथ होगी। एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जब मेरी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज जब मेरी बढ़ रही है, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल हाई लेके जा रही हूँ, तो मेरी ग्रोथ ऑब्वियसली हो रही है। तो मेरा एक सर्टेन ग्रोथ कर्व बनना शुरू होता है। अगर हर बार मैं 1% एक्स्ट्रा डालना शुरू करूंगी, तो सी एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा कर्व यहाँ पे होगा, ठीक है? और फिर मुझे अपने अप्रेजल के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मोस्टली होता यही है कि अप्रेजल के टाइम पे वी सिट अलोंग विद बॉसेस, और फिर हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने ये किया था एंड हमें ये नहीं मिला है, एंड दिस इज द सर्टेन स्किल सेट विच आई हैव, बट आई एम नॉट गेटिंग अप टू दैट मार्क। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि स्किल सेट सबके पास होता है, लेकिन हमने एफर्ट अपना कितना दिया उसको करने के लिए। जब हमें ये समझ आने लगेगा कि हम एफर्ट भी देना जरूरी है, तो फिर हमें ग्रोथ करने से कोई रोक नहीं सकता है, एंड सक्सेस मिलने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो दिस इज हाउ योर ग्रोथ कर्व ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू मोर एंड मोर इंसेंटिव एंड बोनस। सेल्स की जॉब्स में यही होता है। अगर आपको सपोज एक वीक के अंदर 10 प्रोडक्ट सेल करने हैं अपने, राइट? और अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स की जगह 10.1 सेल कर रही हूँ, दैट इज 1% एक्स्ट्रा विच आई एम गिविंग इट। तो मैं जब ये करती हूँ, तो फिर मेरा परफॉर्मेंस जो है वो 1% इंक्रीज होता है। 1% इंक्रीज होने के साथ में क्या होता है, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर तो होगा ही, क्योंकि मैंने उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी दिया है। लेकिन अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करती हूँ, तो मैंने, क्योंकि मेरे को 10 प्रोडक्ट्स बेचने थे, मैंने उसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ 0.1% भी एक्स्ट्रा में कर पाई उसके लिए, तो मेरा जो बॉस होगा वो बहुत खुश होगा, जो कंपनी है उसको फायदा होगा, एंड दिस इज द वैल्यू एडिशन दैट आई एम गिविंग इन, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसके अलावा अगर मैं अपने कस्टमर्स की भी बात करूं, मेरे को 5 लीड्स दी गई थी जो मुझे क्लोज करके आनी थी, या 5 मेरे को प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अपना टारगेट लिया था कि मुझे इस वीक में बेचने हैं, एंड मैंने वो सेल कर दिए। बट एट द एंड ऑफ द वीक मेरे को 2 वर्ड ऑफ माउथ मिल जाते हैं, रेफरेंसेस, राइट? तो मेरे लिए दिस इज 1% एक्स्ट्रा विच आई एम पुटिंग इन। मैंने अपना एफर्ट दिया था नॉर्मली सेल करने के लिए जो मैं देती हूँ, लेकिन मैंने अपना पब्लिक रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग किया, मैंने उसके ऊपर साथ साथ में 1% एक्स्ट्रा एफर्ट दिया कि मेरा पब्लिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। उसकी वजह से मुझे 2 रेफरेंस लीड्स मिली, एंड यू ऑलवेज नो दैट रेफरेंस लीड्स रियली रियली वर्क्स।
नॉर्मल लीड्स को क्लोज होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब रेफरेंस लीड्स हमारे पास आती हैं तो उसको ओपन अप करना भी बहुत ईजी होता है, बिकॉज वी हैव अ रेफरेंस दैट समबडी हैज गिवन अस दिस, एंड उसके बाद फिर हम लोग को उसको कम्युनिकेट करके ना क्लोज करना इज लिटिल मोर ईजियर एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोल्ड लीड्स जिसकी हम बात करते हैं, या नॉर्मल लीड्स जो डायरेक्ट हमारे पास में आती है, उनको क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. So this is how it works. This is the magic of 1% extra that we are putting in. And happy and satisfied customers की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप customer relations के अंदर हैं या आप कस्टमर सर्विस के अंदर हैं, तो जब भी आप 1% एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं, क्या होता है कि जैसे चैटबॉट पे चैट बॉक्स के अंदर या चैटबॉट पे मेरे पास में कुछ क्वेरी आई किसी कस्टमर की, राइट. सपोज मैंने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदा, किसी भी कहीं से भी मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मैंने उसके ऊपर कुछ फीडबैक उनको लिख के दिया, ठीक है. मेरे को सपोज कुछ चीज़ पसंद नहीं आई थी, मैंने उसके ऊपर उनको लिख के दिया. एडिशनली चैटबॉट के ऊपर उन्होंने मुझे लिखा कि ये आपका जो प्रॉब्लम है हमने रजिस्टर कर लिया है, जो कंप्लेंट है आपका रजिस्टर कर लिया, वी आर वर्किंग अपॉन दिस, और आपको हम इमीडिएटली सोल्यूशन दे रहे हैं. और इमीडिएटली सोल्यूशन मुझे देते हैं कि वो आपको बोलते हैं कि आप इस पर इतना % डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है, आप दूसरा ऑर्डर कर सकते हो, जो भी चीज़ें हमारी तरफ से गलत हुई हैं उसके लिए वी आर गिविंग यू दिस ऑफर, और इतने डिस्काउंट के ऊपर आप मेरे से एक दूसरा नया प्रोडक्ट ले सकते हो, राइट. तो इस तरह की जब सर्विस मिलती है, या सपोज मैंने कोई उनको सजेशन दिया एंड दे सिंपली राइट दिस इज अ वेरी गुड सजेशन एंड वी आर मेकिंग अ नोट ऑफ इट, राइट. तो दिस मेक्स मी फील वैल्यूएबल कि मैंने जो इंपॉर्टेंट सजेशन को दिया, दे आर एक्चुअली वैल्यूइंग इट, दे आर पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड्स, दे आर डॉक्यूमेंटिंग इट. तो ये 1% एक्स्ट्रा एफर्ट जो मुझे वो सर्विस दे रहे हैं, तो मैं एज अ कस्टमर बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करूंगी, because I am happy with the services, the kind of the services that that company is providing to me. So this is how it works and this is the magic. Customer loyalty automatically आना शुरू हो जाती है अगर हम 1% एक्स्ट्रा देते हैं. Remember, जहाँ भी हम हैं, जिस भी चीज़ में हम हैं, वहीं से हम 1% एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं. कोई अलग चीज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है. रिलेशनशिप्स में 1% एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं. टास्क के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें मिलते हैं, जो भी हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसके अंदर हम 1% एक्स्ट्रा अपना दे सकते हैं. किसी भी कस्टमर रिलेशन के अंदर है, वहाँ पे भी हम 1% एक्स्ट्रा दे सकते हैं. पब्लिक रिलेशंस में अगर हम हैं तो वहाँ 1% एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ 1% एक्स्ट्रा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आज आपके 1% एक्स्ट्रा एफर्ट का रिजल्ट आपको कब मिलने वाला है. हो सकता है आज ही मिल जाए, हो सकता है कल मिले, या हो सकता है साल 2 साल बाद भी मिले, लेकिन वो 1% एक्स्ट्रा कभी खाली नहीं जाता है, बिकॉज कस्टमर हमेशा याद रखते हैं उस चीज़ को, द काइंड of attitude you have towards them, and how valuable you make them feel. This is really important. This makes them realize that you equally care for them and you make them feel important, और ये उनको याद रहता है. And this is the magic of 1% extra. ये customer loyalty आपके पास से कभी जाती नहीं है. So this is the magic of 1% extra and the customer delight. As I said, कस्टमर जब भी खुश होता है, जब भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड उसको मिलता है, कुछ भी एक्स्ट्रा माइल आप कस्टमर के लिए करते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स आप उसको देते हो, उसको वैल्यूएबल फील कराते हो कि ये सिर्फ हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए है, एंड दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट, राइट. उनको एक्नॉलेज करते हो जब भी वो कुछ अच्छा करते हैं, जब भी आपको ऑर्डर देते हैं, तो यू एक्नॉलेज देम कि वी आर रियली रियली थैंकफुल फॉर योर ऑर्डर. इस तरह की चीजें जब हम करते हैं, तो दिस इज 1% एक्स्ट्रा विच वी आर गिविंग टू अ कस्टमर. दिस वर्क्स एज अ कस्टमर डिलाइट एंड दिस इज द मैजिक ऑफ 1% एक्स्ट्रा. जस्ट रिमेंबर, जहां हम हैं वहां 1% एक्स्ट्रा डाल सकते हैं. राइट नाउ ट्राई दिस आउट. 1% एक्स्ट्रा हर जगह डालने की कोशिश कीजिए एंड सी द रिजल्ट्स, हाउ दिस वर्क्स. इट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग न्यू. जो भी चीजें आप कर रहे हैं ना, बस सिंपली उसमें 1% एक्स्ट्रा आपको डालना है एंड सी हाउ द पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. उसी से आपको पता चल जाएगा, आपकी सक्सेस, आपके रिजल्ट्स उसी से पता चलने लग जाएंगे. जब जब हमने 1% एक्स्ट्रा किया ना, तब तब हमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जरूर मिला है. इट्स जस्ट ओनली दैट वी रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आज रियलाइज कर रहे हैं, आज मिल रहा है, या थोड़ा टाइम बाद मिल रहा है तो बाद में रियलाइज होता है, बट दैट 1% एक्स्ट्रा नेवर गोज वेस्ट. So just try this 1% एक्स्ट्रा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. 1% एक्स्ट्रा अगर आपने भी अपनी लाइफ में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ट्राई किया है, जस्ट लेट मी नो. मैं भी देखना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी कोई आइडियाज आप लोगों के पास में है, और शायद उससे मैं अगर कुछ सीख सकती हूँ, तो दिस वुड बी रियली रियली वेरी वैल्यूएबल फॉर मी फ्रॉम योर साइड. So thanks for watching this channel. Thank you so much. Thank you, and please like, share and subscribe if you want to see the same kind of videos again and again, क्योंकि मैं इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करती हूँ, और लाइफ से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड टेक्निक्स एंड टिप्स, यही सब चीज़ें आपको इस चैनल में मिलने वाली हैं. इफ यू वांट टू सी इट अगेन एंड अगेन, जस्ट सब्सक्राइब द बटन. और आपको लगता है कि आपको किसी के साथ शेयर करना है, तो प्लीज जस्ट डू दैट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.